Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce, and this is SST Edupedia and myself Ankit Sanjay Upadhyay, and today we are going to continue with our previous topic, that is Environmental Study Semester 2 FY BCom, and we have learned the topic that is name is Solid Waste Management, and today we are going to continue with that particular topic, and the topic was Solid Waste Management. So in the last lecture we had covered what is the meaning of solid waste management, and we had also covered what are the types of solid waste management. And in this lecture we are going to continue with all the questions which has been in the our first unit, that is solid waste management के chapter में कितने questions हैं, that we are going to cover. So basically we have a next question which is related to our solid waste management, that is effects or causes of solid waste. अगर सॉलिड वेस्ट होता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे एंड व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक आउट द इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. अगर सॉलिड वेस्ट हमारे यहाँ पे होता है अगर हमारी कंट्री में, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स फॉर दैट, उसके इफेक्ट क्या होंगे. सो वी विल लुक आउट दैट. दैट इज फर्स्ट पॉइंट वी हैव सॉलिड वेस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन डिजीजेस causing organisms such as mosquitoes, flies etc. to thrive freely and increases in population. अगर solid waste होता है, so we have a number of diseases in our daily life. Like we can say we have a lots of mosquitoes in our surroundings, we have a lots of flies, we have a lots of varieties of diseases that arises from the solid waste. Then second point we can see here, it runs off the with the rain water and mixes with the nearby water bodies, causes water pollution. अगर we have a lots of waste pollution and by waste pollution we can get also our water polluted. अगर वेस्ट पॉल्यूशन हमारे यहाँ पे होता है तो उससे बहुत सारे वाटर पॉल्यूशन भी हो सकते हैं. जो भी हमारे वेस्ट होंगे दैट डायरेक्टली गोइंग टू बी अ रिलेशन विद द वाटर एंड दैट विल लीड्स टू इंक्रीज इन द वाटर पॉल्यूशन. देन वी हैव अ थर्ड पॉइंट, दैट इज बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन. अगर हम किसी सॉलिड वेस्ट डस्ट को वेस्ट को जलाते हैं, वी कैन से बर्निंग करते हैं, सो दैट विल ऑल्सो अराइव टू लीड अ एयर पॉल्यूशन. वो हमारे एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ाता है. Then we have a fourth point, that is radioactive substances presented in solid waste causes a number of diseases in human being. We can say बच्चों कि अगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होते जनरेट होते हैं तो we have a lots of diseases in human being as well, plants as well, and lots of wild animals also. We can take an example of whenever we are surrounding with any waste, so what happen at that time, we are starting our headache. हमारे यहाँ पे सर में हेडेक होने लगता है और बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत सारे दिक्कतें पैदा होती हैं. लाइक वी कैन से हेडेक हो जाता है, लंग कैंसर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन की वजह से लंग कैंसर भी होता है हमको, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं. सो दैट विल मेनली अराइज विद द वेस्ट पॉल्यूशन. देन वी हैव अ सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज सॉलिड वेस्ट रिड्यूसेस द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ लैंड. अगर सॉलिड वेस्ट ज़्यादा हो रहा है सो वी कैन रिड्यूस आर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ऑल्सो. जो हमारी लैंड होती है उसकी प्रोडक्टिविटी भी डे बाई डे कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्ट पॉल्यूशन. देन उसके बाद वी हैव अ लास्ट पॉइंट, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट सच एज पॉलीथीन, प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेज व्हेन बर्न्ड, हैंस कैरी एयर पॉल्यूशन. अगर हमारे यहाँ पे प्लास्टिक होता है, एक सर्वे के हिसाब से बोला गया है कि द एज लाइफ ऑफ प्लास्टिक इज मोर देन 15,000 ईयर. 1500 ईयर्स से भी ज़्यादा एक प्लास्टिक की एज लाइफ होती है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ़ वी आर बर्निंग प्लास्टिक, इफ़ वी आर बर्निंग एनी मटेरियल विच इज़ मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, दैट विल अगेन कैरी अ एयर पॉल्यूशन इन आर environment. So this is the first question we had covered, that is effects of solid waste. Then we have a next question, that is solid waste causes. What are the causes, what are the reason behind that? If we are generating lots of solid waste in our daily life, so what are the causes? उसके रीज़न क्या है? सो हेयर वी हैव अ मल्टीपल रीज़न. दैन फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. एज वी हैव अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, बहुत सारा पॉपुलेशन है एंड पॉपुलेशन को कवर करने के लिए वी नीड एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज आर इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमारे देश में इंडस्ट्रीज ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एंड वेन एवर वी हैड अ लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स वी हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं सो उससे बचा हुआ जो डस्ट है वो भी डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है. सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड दिस सॉलिड वेस्ट. देन वी हैव अ सेकंड पॉइंट, दैट इज़ ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ. As we have a number of population in our India is the second highest population growth in our
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सेकंड पॉपुलेशन है वो इंडिया की है। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतना ज़्यादा वेस्ट। तो नंबर ऑफ पीपल विच आर लिविंग इन अ कंट्री, दे आर बहुत सारे वेस्ट वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कंट्री में। सो दैट विल बी द सेकेंड मेन रीज़न ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। देन वी हैव अ नेक्स्ट point, that is due to uses of latest technology. As we are maintaining our daily standard of life, for that we are using lots of technologies in our daily basis. Like we are using ACs, we are using refrigerators, we are using washing machines. So these are the example of latest technology. अभी AC यूज़ करते हैं, we are using refrigerator, we are using washing machines. तो इनसे जो निकलने वाला डस्ट होता है, इनसे सबसे ज़्यादा वेस्ट निकलता है। लाइक इन सब से एक कॉमन मटेरियल निकलता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो हमारे वाटर्स में जाकर, वो हमारे इन्वायरमेंट में जाकर घुल मिल जाता है एंड इससे सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकल कर आता है। Then we have a fourth point, that is the main reason behind the solid waste, due to lack of education in the, we can say, country में। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है एंड वी हैव अ लैक ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट में कोई एजुकेशन नहीं दिया जाता है एंड दैट विल अगेन, जब लोगों को नॉलेज नहीं होता है तो उसका एक मेन रीज़न बन जाता है कि लोग एजुकेटेड नहीं होते तो कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। दे डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। So that will also leads to increase in the solid waste. Then we have a next point, due to cultural values. We can say there is a lots of cultural event we are organizing in India. For an example, we can take an example of गणपति फेस्टिवल। जब हमारे यहाँ पे गणपति फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट उस टाइम पे जनरेट करते हैं। वी कैन से गणपति फेस्टिवल हो गया, नवरात्रि हो गया। सो लॉट्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से भी हमारा जो वेस्ट है वो जनरेट होता है। So being an educated person, we can use eco-friendly Ganpati as well. So what we can do after the festival, we can compose that particular statue in a bucket. So what will lead, ये क्या होगा, ये हमारा डस्ट को डे बाय डे बच्चों क्या करेगा, कम करेगा। That is the we can say fifth point. And then we have a sixth point, due to modernization. हम आज के ज़माने में मॉडर्न इतना होते जा रहे हैं, मॉडर्न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे डस्ट निकलते जा रहा है। वी आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन, we are using only once time and we will declare that particular thing as a waste. So what happen, that will again it will be counted under the waste. तो हम मॉडर्न होने की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेट करने लगे। देन वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक व्हीकल, वी आर यूजिंग private vehicle and that will again leads to create more and more waste pollution. Then we have again next question, we are looking, मैंने हम लोगों ने इफेक्ट देखा। देन वी हैव अ कजेस एंड लास्टली अभी हमने देखा कि हाँ किस वजह से वेस्ट निकलता है। देन हमने देखा कि उसके इफेक्ट क्या होंगे। अभी वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इट्स प्रोसेस। अगर हमें वेस्ट को कम करना है तो हम उस क्या अडॉप्ट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में जिससे हमारा सॉलिड वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। सो हेयर वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रोसेस, वी हैव अ मेनली 5 प्रोसेस अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दैट इज, फर्स्ट प्रोसेस इज रिड्यूस। वी कैन रिड्यूस आवर डस्ट वेस्ट डेली इन डेली लाइफ। हम अपना वेस्ट क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोगों को लिखा भी है रिड्यूस के आगे, लोअरिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। जितना हो सके उतना ज़्यादा हम वेस्ट को कम करते जाए। देन वी हैव अ सेकेंड प्रोसेस, रीयूज। वी कैन रीयूज दैट पर्टिकुलर मटेरियल, वी कैन रीयूज। हम बार बार उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टूथब्रश। Whenever we have a toothbrush, हम जब तक उसका यूजेस रहेगा, जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी, हम उसे यूज़ करेंगे। आफ्टर देन वी कैन यूज़ फॉर दी, वी कैन से कि हेयर को कलर करने के लिए या फिर और किसी मटेरियल के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम उसे वेस्ट नहीं कंसिडर कर सकते। सो दैट वी हैव टू इंक्रीज इन आवर डेली लाइफ कि हाँ हमें एक हैबिट डालनी पड़ेगी कि अगर हमारा कोई चीज़ है हम उसे बार बार यूज़ करें। देन वी हैव अ रिसाइकल, यूजिंग मटेरियल्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। हम कोई भी प्रोडक्ट को, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वेन एवर यू आर यूजिंग एनी वाटर बॉटल, सो वेन एवर यू आर कंज्यूमिंग दैट वाटर, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको वो बॉटल के अंदर जो उसका ढक्कन होगा उसे बच्चों बॉटल के अंदर ही डालकर उसे फिर फेंकना चाहिए, थ्रो करना चाहिए। सो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट वापस से रिसाइकल होगा। अगर हम वो प्रोडक्ट के अंदर बॉटल को ढक्कन में नहीं डालकर ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो रिसाइकल नहीं हो पाता। क्यों, वो बार बार वही चीज़ को रीयूज़ करते रहते हैं। तो
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रीयूज़ नहीं कर सकते, बार बार अगर उसे रीयूज़ करते हैं सो अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ डिजीजेस। देन वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिकवरी। रिकवरी मीन्स व्हाट? रिकवरी एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। जो भी अगर वेस्ट निकल रहा है उससे अगर हम कोई चीज़ रिकवर कर पा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल वी आर यूजिंग वी कैन से प्लास्टिक। अभी प्लास्टिक से क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड, हम लोग उससे रोड बना सकते हैं प्लास्टिक से। सो दिस विल वी कैन से वेस्ट बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, हम लोग वेस्ट से कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं ये हम लोगों को सीखना होगा। देन वी हैव अ लास्ट पॉइंट दैट इज लैंडफिल। लैंडफिल मीन्स व्हाट? सेफ डिस्पोजल ऑफ लैंड, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टू लैंडफिल। अगर हम लोग कचरे को, वेस्ट को अच्छी तरीके से रख रहे हैं, वी कैन सेग्रीगेट देम, सो व्हाट रिजल्ट विल कम? रिजल्ट विल देयर कि हम लोग कम से कम लैंड को यूज करेंगे। दैट इज दी 5 process of solid waste management, that is reduce, reuse, recycle, recovery and landfill. Then we have a last question is in this unit, that is role of a citizen in waste management. If we are a good citizen of our country, so what is the role behind the waste management? अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं अपने देश के तो हमारा क्या एक ड्यूटी बनता है, हमारा क्या एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने वेस्ट को कैसे कम करें। तो सबसे पहला जो हमारा रूल बनता है दैट इज यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल्स। वी कैन यूज इको फ्रेंडली मटेरियल्स। इको फ्रेंडली मैंने एग्जांपल अभी दिया आपको कि कैसे हम गणपति फेस्टिवल में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टेचू हम एक इको फ्रेंडली स्टेचू लाकर वहीं पे विसर्जन कर सकते हैं अपने घर में ही। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक इको फ्रेंडली मटेरियल है। इको फ्रेंडली मटेरियल का मतलब ये होता है कि ऐसा मटेरियल जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मफुल पॉल्यूशन या हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, तो वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। देन वी हैव अ सेकंड पॉइंट, गिव इन्वायरमेंटल लिटरेसी टू एवरीवन। जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अगर कोई वेस्ट फैलाता है या कोई डस्ट फैलाता है तो आप उनको भी एजुकेट करें, आप उनको भी लिटरेट करें कि हाँ हमारे इन्वायरमेंट में हमारा लिटरेसी होना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देन वी हैव अ थर्ड पॉइंट दैट इज एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इतना ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने लगे, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो जाए। हम कम से कम एसीज यूज़ कर सकते हैं, कम से कम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। होगा क्या उससे? वी कैन reduce the waste in our daily life. So that will be the third point. Then fourth point, we have a strict implementation of rules and regulations. Means क्या कि हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। If we are स्प्लिटिंग एनीवेयर, अगर हम कहीं पे थूक रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ कर रहे फेंक दे रहे हैं तो हमें क्या होता है, एक डर नहीं होता है। सो व्हाट गवर्नमेंट को क्या करना होगा? वी हैव टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में क्या करना होगा, एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा ताकि लोगों को डर रहे, ताकि लोगों को सावधानी बरतनी पड़े कि अगर मैंने कहीं पे कचरा फेंक दिया तो उसका फाइन मेरे ऊपर ही आएगा। सो वी हैव टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। देन उसके बाद वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इट मीन्स व्हाट कि हमें ऐसे प्रैक्टिसेस करने होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर पाए अपने डस्ट से। देन वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट लाइक ड्राई एंड वेट वेस्ट। हमें क्या करना होगा, हमारे वेस्ट का सेग्रीगेशन करना होगा, उसे बांटना होगा। जैसे हमारा एक एजेंडा हो गया गवर्नमेंट का कि सूखा कचरा अलग रखो, गीला कचरा अलग रखो। सो वी कैन सेग्रीगेट दैट। देन वी हैव अ लास्ट पॉइंट, प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, कम से कम वेस्ट कर सकते हैं। So in this lecture we had covered with the 4 questions, that is first one, effect or causes of solid waste. Then we have complete also what is solid waste management and its process, and lastly we have completed role of citizen in waste management. Thank you for today's, and we will continue in the next lecture. Be a part of solution, not the part of pollution. Thank you everyone.